हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स अपने ज़रूर व्यक्त करें ताकि हम और अच्छे वीडियोस आप तक ला पाए। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज की वीडियो का टाइटल है पौंडीचेरी 2 days ट्रैवल प्लान, मस्ट विजिट प्लेसेस, एक्सप्लोर विद जयराज। Hello friends, welcome to a new destination. My name is Jairaj and today I am taking you to one of the most beautiful Union Territory of India, Pondicherry. So, let's come and explore this place. Pondicherry, officially known as Puducherry, is one of the Union Territory of India. It offers a glimpse of France and the French quarters, जिसे White Town भी कहते हैं, is filled with cafes, bakery, जहां आप आकर French cuisine का मजा भी ले सकते हैं। In this video, I will take you to the most popular places in Pondicherry. मैं Pondicherry 23rd अगस्त को पहुंचा and checked into this amazing hostel. I will provide all the information of this hostel in my next video. फ्रेश होने के बाद मैंने एक स्कूटी रेंट पे ली because this is the cheapest and most convenient way of traveling at Pondicherry. I will recommend you also to take a scooty or bike on rent. So the first place I headed to is the Paradise Beach, which is also famous as Paradise Island. It is the most beautiful and picturesque beach of Pondicherry. You can reach Paradise Island by a ferry service from Chunambar Boat House. आप अगर चाहें तो यहाँ पानी में एंजॉय भी कर सकते हैं या चाहें तो ATV का राइड ले सकते हैं या सिर्फ बीच पर बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हैं। मैं पहले स्कूटी से ओल्ड पैराडाइज बीच गया एंड फिर वहां से वॉक करते हुए पैराडाइज आइलैंड तक आ गया। Here I end my day 1 and went back to hostel to recharge myself for the next day. Next day I woke up early and had a breakfast and then traveled to Auroville, which is called the City of Dawn. It is an amazing township where people from across the world of all cultures come and live together in peace.
Matri Mandir is the most important structure and is located in the middle of Auroville. You have to walk 15-20 minutes to reach this spot, and the view of Matri Mandir is simply amazing. औरोविले देखने के बाद मैं पहुंचा सेरेनिटी बीच। If you want to sit back and relax for some time, seeing the waves crashing on the shores, then this gorgeous beach offers it all. Surfing is very popular here and you can also take a dip into the water. Don't forget to carry the extra clothes. सेरेनिटी बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद आप आ सकते हैं रॉक बीच, which is also known as Promenade Beach of Pondicherry. The beach is crowded with group of people playing volleyball, walking, jogging. It looks beautiful due to the stretch of black rocks along its sides. I spent my entire evening roaming around this beautiful beach. On the third day, I went to Pondicherry Museum, Bharti Park, Manakula Vinayagar Temple and Botanical Garden. तो ये थी मेरी 2 nights and 3 days की पौंडीचेरी ट्रिप, where I tried to provide you with all the details. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.
I will meet you in the next video. Thanks for watching. तो दोस्तों, यूनियन टेरिटरी के इस श्रृंखला का यह दूसरा हिस्सा है। पहला पार्ट हमने लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में हमने जानकारी ली थी। अब ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम पौंडीचेरी, जो हमारे भारत की यूनियन टेरिटरी, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पौंडीचेरी के बारे में बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पेश किया जयराज जी ने। और बिल्कुल जितने स्पॉट्स वो कवर पाते थे 3 दिनों में, उसे कवर करने की उन्होंने कोशिश की है। उन सारी चीज़ों के, उन सारे लोकेशंस के बारे में जानकारी देने की कोशिश उन्होंने की है और बहुत अच्छा प्रयास उनका रहा है। पौंडीचेरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि पौंडीचेरी, जो पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, पहले एक फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रेंच कॉलोनी होने की वजह से बहुत वर्षों तक, सेंचुरीज तक फ्रेंच ने वहाँ पर रूल किया है। तो उस जगह जगह पर पौंडीचेरी में उसके इम्प्रेशंस हमें दिखाई देते हैं। फ्रेंच कॉलोनी जैसे आर्किटेक्चर्स हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। तो बिल्कुल एक आप ऐसा कभी कभार ऐसे आप कुछ उन हिस्सों में आप चले जाते हो शहर के, तो ऐसा लगता है कि मानो आप फ्रांस के किसी शहर में या फ्रांस के किसी गांव में आप आ गए हो। तो ये इम्प्रेशन फ्रेंच कॉलोनियल का हमें वहाँ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसे हॉटस्पॉट्स है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से घूमने लायक वहाँ पर। तो वहाँ पर क्योंकि एक वहाँ पर समुंदर है, तो नेचुरली बहुत सारे बीचेस वहाँ पर होंगे। तो उसमें फिर पैराडाइज बीच है या फिर सेरेनिटी बीच है, प्रोमिनेंट रॉक बीच है। तो ऐसे बहुत सारे बीचेस है। हर एक बीच की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ पर जयराज जी ने उसको बताया है। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि औरोविली आश्रम के बारे में उन्होंने हमें सफ़र करवाया और वहाँ पे खास करके मातृ मंदिर जो है, बहुत ही अमेजिंग टेम्पल, बिल्कुल स्पिरिचुअल शेप में है कि जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, चाहे कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, बोली भाषा के हो, सभी लोग वहाँ पर आते हैं। एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर वहाँ पर है। साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी बताने की कोशिश की है कि जो रॉक बीच है, तो उस पूरे बीच रोड पर बहुत सारे फ्रेंच ईटरीज़ है, रेस्टोरेंट्स है। तो लोगों को वहाँ पर अलग अलग खाने का आस्वाद भी उन्हें वहाँ मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही थोड़े इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, वॉर मेमोरियल है, स्टैचू ऑफ जोन ऑफ आर्क है, महात्मा गांधी का वहाँ पर स्टैचू है, डुप्लेक्स स्टैचू, जो पहले अर्सवाइल गवर्नर थे फ्रेंच रूल के समय में। हेरिटेज टाउन हॉल है और रिमेंस ऑफ ओल्ड पियर है, पौंडीचेरी म्यूज़ियम है, भारती पार्क है, बॉटनिकल गार्डन है, मनकुला विनायगर टेम्पल है जो डेडिकेटेड है लॉर्ड गणेशा के लिए, जो 5 सेंचुरी ओल्ड है। तो इन सारी जगहों के बारे में उन्होंने जानकारी दी और ख़ासकर उन्होंने जिस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो बाइक है, कि उन्होंने हमें ये भी जानकारी दी है कि हम बाइक से इन सारे स्पॉट्स को हम घूम सकते हैं। 250-300 रुपये पर डे का वो किराया होता है। तो बहुत ही आसानी से हम इन सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को हम घूम सकते हैं। साथ ही साथ डायलॉग बॉक्स में उन्होंने ये भी हमें जानकारी दी है कि कौन से दिन ये म्यूज़ियम, ये पार्क ये खुले रहते हैं, विज़िटर्स फ़ीस क्या होती है, विज़िटर्स टाइमिंग क्या होते हैं। तो एक अच्छा सा फैक्ट फाइल हमारे सामने जयराज जी ने पेश किया है। बहुत अच्छी फोटोग्राफी है, खूबसूरती से उन बीचेस को, उन सारी जगहों को कवर किया है। और मैंने पौंडीचेरी के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तो दोस्तों, अजरज की बात है कि ये पौंडीचेरी शायद इकलौता ऐसा ये यूनियन टेरिटरी होगी कि जहाँ पर वो 2 बार अपने इंडिपेंडेंस डे को मनाता है। सबसे पहले तो 15 अगस्त 1947 को, जब हमारे भारत को आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त को वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और साथ ही साथ 16 अगस्त 1962 को पौंडीचेरी को आज़ादी मिली थी फ्रेंच रूल से, और वो ऑफिशियली हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, यूनियन टेरिटरी उसे डिक्लेयर किया गया। तो 2 दिन वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 15 अगस्त और 16 अगस्त। साथ ही साथ हमें शायद ये भी लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे
वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शायद वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज़ करते होंगे, शायद चाहे फिर वो स्कूबा डाइविंग है या फिर पैरा साइकिल है, जो ये सारे जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, तो इससे टूरिज़्म को और बढ़ावा मिलता है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लोग नहीं तो बाहर से भी लोग आते हैं, तो उनके लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। बस मुझे इतना ही कहना था कि इस पूरे वीडियो में अगर जयराज जी औरोबिंदो आश्रम को भी अगर वो कवर कर लेते, क्योंकि जब भी पौंडीचेरी का नाम आता है तो औरोबिंदो आश्रम का नाम आता है कि जिन्हें जैसे 1926 में श्री औरोबिंदो जी ने उसे स्थापित किया था, तो उसके बारे में भी अगर हमें थोड़ी बहुत जानकारी वो दे देते तो अच्छा होता। पर खैर जो लिमिटेड टाइम, जो लिमिटेड वक्त उनके पास था, उसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पौंडीचेरी के बारे में हमें दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा ये यूनियन टेरिटरी है। हमें प्रयास करना चाहिए कि इन सारी जगहों पर हमें जाना चाहिए। जो हम वीडियो पे देखते हैं, असल रूप में जब हम वहाँ पर जाकर उसे देखेंगे तो उसका आनंद, उसका मज़ा जो है वो बिल्कुल कुछ और ही होगा। तो दोस्तों तब तक हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।